Hello students. So in this lecture we are going to discuss about CMIT trigger circuit. So this is the circuit of CMIT trigger using transistor. We can design a CMIT trigger circuit by operation amplifier also, but in this lecture we are going to discuss this CMIT trigger circuit using the transistor. Okay. So basically this CMIT trigger circuit in respect of this using the transistor, it is basically a bistable circuit. We have all of you know the bistable multivibrator circuit. So it is more like is same as bistable circuit. A bistable circuit is whose output state are controlled by the input signal, and hence it can be used as level detecting circuit. Okay, but in this CMIT trigger, what is the difference between bistable and this CMIT trigger is that bistable multivibrator has this both transistor will get feedback from the one another transistor collector of the transistor will be feedback to the base of the another transistor. So there are two transistor Q1 and Q2. So इसके जो फीडबैक देंगे इसके बेस में इसका कलेक्टर में इसका बेस. लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सीमेट ट्रिगर में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस है कि इज द मिसिंग द कपलिंग फ्रॉम कलेक्टर ऑफ दिस Q2 to Q1. Q1 के बेस में Q2 का जो कलेक्टर है that is not there, but emitter of this and emitter of Q1 and Q2 are connected to each other. Okay, this ठीक है through ground RE, and this RE also act as a feedback path. All of you know, if you study the differential amplifier, then this RE will be there for providing the feedback operation. ठीक है. तो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या था, हमारा दोनों जो कपल था, इसका कलेक्टर इसके बेस पे और इसका कलेक्टर इसके बेस में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो Q1 का कलेक्टर है that is only coupled with the base of Q2 and वाइस वर्सा नहीं है. ठीक है, इसके बेस में हम इनपुट देंगे. तो सबसे स्टार्टिंग में जब हम इसका ऑपरेशन देखेंगे, सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले अगर सपोज करो इनपुट जब आपका जीरो है, व्हेन इनपुट इज जीरो, लेट अस कंसीडर फर्स्ट इफ इनपुट इज जीरो. अगर इनपुट जीरो है तो जो Q1 होगा, Q1 के बेस में क्या है, हमारा इनपुट है, तो Q1 विल कट ऑफ. ठीक है, एंड Q2 इज इन सैचुरेशन. ठीक है, Q1 कट ऑफ है तो VCC ये जो है इसका जो कलेक्टर ये क्या है, ये इससे कपल हो रखा है. देन बाय द एक्शन ऑफ रीजेनरेटिव दिस Q2 is in saturation. Okay, as a result the output, if it is in saturation then output V0 is low. ठीक है, तो VC sat, assume VC sat to be 0 here, but we have VC sat here. ठीक है, तो आउटपुट जो होगा जब ये सैचुरेशन में होगा Q2, then output will be low. Output is low, and if VC sat is assumed to be 0, तो voltage across this RE, what will the voltage across this RE, and voltage across this RE will be VRE. For example, it will be VCC. अब ये जो है ये वाला पाथ हम देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे तो ये ऑफ है, तो इस पाथ के थ्रू अगर देखेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर लगाएंगे, RE के क्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, तो VCC into RE divided by what, total RC2 plus RE plus RC2. This will be when input is 0 and Q1 is cut off and Q2 is saturation. This is the first condition. ठीक है, and this voltage is also, ये जो वोल्टेज है, ये जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज ऑल्सो इन पैरेलल विद द इमिटर वोल्टेज ऑफ Q1. तो ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज ऑल्सो द इमिटर वोल्टेज ऑफ Q1. ठीक है, सो फॉर Q1 टू कंडक्ट, अगर Q1 को कंडक्ट करना है तो इनपुट वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन फॉर Q1 टू कंडक्ट. इस केस में अगर Q1 को कंडक्ट करना है तो इट्स वोल्टेज, इट्स इनपुट वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन what, this sum of this VCC into RE divided by RE plus RC2, what we have here जो हमने निकाला. ठीक है, प्लस 0.7. तो Q1 को कंडक्ट करने के लिए
ये जो इनपुट वोल्टेज है ये क्या होना चाहिए, ये VCC इंटू आर ई डिवाइड बाई आर ई प्लस आर सी टू जो हमने निकाला जब Q2 कंडक्ट कर रहा था, Q1 ऑफ था, तब जो जो एमिटर ये जो वोल्टेज हमने निकाला ये प्लस 0.7 से कम होना चाहिए जब इनपुट, जब ये वोल्टेज इससे ज़्यादा होगा देन Q1 will conduct, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्टेज सपोज इनपुट वोल्टेज विल, इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनपुट सपोज करो इससे ज़्यादा हो गया, जैसे इनपुट इससे ज़्यादा हुआ, इस वाले टर्म से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, तो Q1 कंडक्ट करना, Q1 स्टार्ट कंडक्टिंग, Q1 कंडक्ट्स, ठीक है, इन सेकेंड, और Q2 जो है Q2 विल कम इन कट ऑफ, क्योंकि ड्यू टू दिस रीजेनरेटिव एक्शन जो कलेक्टर जो है ये इसके बेस में अप्लाई हो रहा है, तो अगर ये कंडक्ट करेगा फिर सैचुरेशन में आएगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल मिनिमल, सैचुरेशन वोल्टेज विल बी मिनिमल एंड दिस इज फीड टू द बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे सैचुरेशन में जाएगा वैसे वैसे ये कट ऑफ में जाएगा, तो ये जैसे जैसे ऑन होगा वैसे वैसे Q2 ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रीजेनरेटिव एक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सैचुरेशन में जाएगा वैसे वैसे ये कट ऑफ में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो कलेक्टर है उसके बेस से लिंक है, तो जैसे जैसे सैचुरेशन वोल्टेज कम होती रहेगी ये वोल्टेज बेस में होगा तो ये जो है कट ऑफ में आएगा, तो Q2 अल्टीमेटली कट ऑफ में आ जाएगा ड्यू टू वाई, ड्यू टू रीजेनरेटिव एक्शन, ओके। सो एज ए रिजल्ट V0 अगर Q2 कट ऑफ में आ गया तो क्या होगा, ये जो VCC था जो कि यहाँ था that will come whole across output, the output will goes high, output will be high when Q2 is cut off in first condition, या फर्स्ट केस हमने देखा था जब Q2 सैचुरेशन Q1 कट ऑफ में था, then output will be low, in this case when Q2 will be cut off and Q1 conduct the output voltage will be high, ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस आर ई, इस केस में जब Q2 कट ऑफ है और Q1 कंडक्ट है तो इस केस में IC1 फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या होगी, जो वोल्टेज अक्रॉस आर ई अब क्या होगा, जो वोल्टेज डिवाइडर रूल से इट विल बी सेम, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये VCC इंटू आर ई तो हो गए डिवाइडेड बाई आर ई प्लस RC1, पहले ये RC2 था जब Q2 कंडक्ट कर रहा था, जब Q1 कंडक्ट कर रहा है तो RC1 से जो करंट वहां से फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर, दिस इज एमीटर रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो अ एमीटर बेस एमीटर वोल्टेज ऑफ Q1, तो as long as transistor, as long as this input voltage is this, transistor Q1 will conduct, as long as this the input voltage is greater than this plus 0.7 as we have seen in here, 0.7 is cut in voltage, ठीक है। तो Q1 will conduct up to when, up to जब तक ये V in जो है ये VCC into RE डिवाइडेड बाय RE प्लस RC1 ये प्लस 0.7, जब तक इनपुट वोल्टेज इतना है तब तक Q1 will conduct, ओके। जैसे V in फॉल होगा इस लेवल के नीचे, जैसे इनपुट वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज अगर ये V in डैश ले लें हम, जैसे इनपुट वोल्टेज V in डैश से कम होगा देन Q will come out of saturation, ठीक है, come out of saturation and rest of circuit operate due to regenerative action, जैसे ये saturation से बाहर होगा धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ेगा, तो ये वोल्टेज बढ़ेगा तो ये एक्टिव होने लग जाएगा, तो ये धीरे धीरे ये कट ऑफ होने लग जाएगा, ये सैचुरेशन में आने लग जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, रीजनरेटिव एक्शन से Q1 कट ऑफ में आ जाएगा, Q2 सैचुरेशन में आ जाएगा, जो पहला वाला कंडीशन हमारी थी। तो हमारे पास आउटपुट स्टेज पहले लो था फिर हाई है, तो आउटपुट स्टेज लो और हाई डिपेंड करेगा इनपुट वोल्टेज लेवल पे, इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, जो आउटपुट स्टेज है वो हाई एंड लो will be high and low dependent on the input voltage level, तो input voltage level कौन कौन सा हमने देखा, RC into RE, VC into RE divided by RE plus RC1, जब पहला जब हमारा Q2 कंडक्ट कर रहा था Q1 ऑफ था,
ठीक है, प्लस 0.7। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या आ रहा था, लो आ रहा था आउटपुट। हाई कब आ रहा था, जब इनपुट वोल्टेज जो है VCC इंटू RE प्लस RC2 प्लस 0.7। ठीक है, जब ये हमारा इनपुट वोल्टेज था, तो हम इसको, इस वाले केस को, इस वाले को हम बोल सकते हैं कि इट इज अ लो VLT, लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एंड इट इज अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर इनपुट रहेगा तो डेट विल बी हाई, और इसके नीचे रहेगा डेट विल बी लो, आउटपुट विल बी लो। if you draw the output and transfer characteristics of this Schmitt trigger, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट, अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट। ठीक है, LTP, दिस VLT इज LTP, दिस इनपुट वोल्टेज, वी आर कंसीडरिंग द इनपुट वोल्टेज, ये दोनों इनपुट वोल्टेज है, ये लोअर थ्रेशोल्ड एंड इट इज अपर थ्रेशोल्ड, तो ये है अपर थ्रेशोल्ड UTP। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब LTP, जब ये जो इनपुट वोल्टेज, जब UTP से वोल्टेज कम है, तब तक क्या होगा, तब तक Q2 जो है, Q2 ऑन रहेगा, और आउटपुट क्या आएगा, VCSAT, जो हम लो बोल रहे थे, जिसको हम लो बोल रहे थे, ये तब तक आएगा जब इनपुट वोल्टेज इससे ज्यादा ना हो। जैसे इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है हमारा, जैसे इनपुट वोल्टेज इससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होते ही क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, दिस आउटपुट वोल्टेज विल राइज टू VCC। ठीक है, इट विल राइज टू VCC, ये यहीं रहेगा, कब तक, जब तक ये जो इनपुट वोल्टेज, अपर थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज है हमारा, उससे ज्यादा रहेगा, जो कि कौन सा था, जो कि हमारा ये वाला था, ये वाला अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज था। जब तक ये इनपुट वोल्टेज से ज्यादा रहेगा, तब तक आउटपुट हमारा क्या रहेगा, हाई। ठीक है, तो आउटपुट हाई मतलब दिस इज VCC। ओके, तो ये हमारा VCC आएगा। जैसे ही हम वोल्टेज को इससे कम करेंगे, तो ये VCC रहेगा, लेकिन कब तक VCC रहेगा, जब तक ये इस पॉइंट में ना आ जाए। अगर हम ट्रैवल करते हैं, इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो ये VCC रहेगा, लेकिन जब ये हम घटा रहे हैं, जब Q1 हम क्या कर रहे थे, जब इनपुट वोल्टेज कम करते हैं, तो वो VCC रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक ये इस वोल्टेज के नीचे ना आ जाए। तो जैसे ये LTP से नीचे आ जाएगा, वैसे ये इट विल कम इन दिस वे। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा रीजेनरेटिव एक्शन से जो Q2 ऑन हो रहा था और Q1 ऑफ हो रहा था, तो ये डिपेक्ट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब हमारा Q2 ऑन हो गया फिर से, और जो आउटपुट वोल्टेज हमारा फिर से लो आ गया, जो कि सैचुरेशन वोल्टेज है VCSAT, जो हमने कंसीडर किया था नेग्लिजिबल। ठीक है, हमने लो जीरो कंसीडर किया था, वो ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट है जो LTP, और ये वाला पॉइंट है जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है, इसके थ्रू। तो ये जो आप जो लूप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज हिस्टेरिसिस लूप। ओके, सो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ RC1 और RC2, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, RC1 और RC2 पे डिपेंड कर रहा है। तो RC1 और RC2 की जो वैल्यू है, उस पे उसको चेंज करके ये जो हिस्टेरिसिस जो है, इसके जो अमाउंट है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, while the value of RE, this RE can be used to increase the upper threshold voltage। ठीक है, तो this is how this Schmitt trigger works। ठीक है, तो I hope you understand, and one the main application of this you can easily find it clear that अगर हम comparator use करते हैं, if comparator use करते हैं zero crossing detector में, as a if comparator is being used as zero crossing detector, तो वो क्या करेगा, वो कभी कभी फॉल्स ट्रिगरिंग दे देता है। ठीक है, तो जीरो क्रॉसिंग, जीरो रॉन्ग इंडिकेशन देगा जीरो क्रॉसिंग में। अगर वो कोई नॉइज आ गया, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर जो हमारा जो ट्रिगरिंग है, जो जो ट्रू ट्रिगरिंग है, फॉल्स ट्रिगरिंग वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन
इस अननेसेसरी स्विचिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमित ट्रिगर का यूज करते हैं। सीमित ट्रिगर में जैसे हमारा एक फिक्स है, ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज है, अगर इस वोल्टेज से ज़्यादा हुआ देन इट विल गिव द आउटपुट हाई, और ये कब तक लो नहीं होगा, जब तक ये LTP से कम नहीं होगा। जैसे UTP से ज़्यादा होता है तो ये VCC देगा, और अगर 1 में है, हाई में है आउटपुट, तो जब तक ये LTP से कम नहीं होगा तब तक ये लो नहीं देगा। तो इस तरीके से ये सीमित ट्रिगर, एंड इट हैज़ अ वास्ट एप्लीकेशन। सीमित ट्रिगर हैज़ वास्ट एप्लीकेशन. So one of the application is this, what I told you in this, that can be used in zero crossing detector. So one of the important application of CMIT trigger is that it can convert the sine wave into square wave. ठीक है, तो स्क्वायर वेव और स्क्वायर वेव, साइन से स्क्वायर वेव जो कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं सीमित ट्रिगर को। एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड टू सिंपली, इफ ऑन और ऑफ कंट्रोलर का अगर यूज़ कर रहे हैं, ऑन और ऑफ कंट्रोलर, जहाँ पे हम सिंपल, इफ़ यू वांट टू यूज़ सिंपल ऑन और ऑफ कंट्रोलर, तो जैसे टेम्परेचर बेस्ड स्विचेस होते हैं, तो उसमें भी हम सीमित ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. If any doubt still there, then you can do let me know. Thank you very much.